ہمارے مذہب پر انگلی اٹھا کے یا ہماری قرآن شریف پر کو انگلی اٹھا کے یا قرآن شریف کو جلا کے، جیسے کہ ابھی سویڈن نے کیا ہے، یا چند لوگ ایسے بذات ہیں جو کرتے رہتے ہیں یہ سب چیزیں، تو ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان کو کیا حاصل ہوتا ہے ہمارے قرآن کو جلا کر یا ہمارے مذہب پر انگلی اٹھا کر؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے کسی کے ساتھ۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی مسلمان نے بھگوت گیتا جلائی ہو؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ کسی مسلمان نے کسی عیسائی کی جو ہے کتاب کو جلایا ہو، یا مسلمانوں نے کسی اور مذہب کی کتابوں کو جلایا ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں کسی مذہب کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنی ساری قوم ہے دنیا میں، اتنے سارے مذہب ہے دنیا میں، لوگ انہیں ٹارگٹ نہیں بناتے ہیں، صرف ایک مسلمان، صرف مسلمان ہی ٹارگٹ ہے۔ کیوں؟ ایسا مسلمانوں نے تمہارا کیا بگاڑ دیا ہے جو تم مسلمانوں کے پیچھے نہا دھو کے یا ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو؟ ابھی اگر مسلمان تمہاری کتابوں کو جلانا شروع کر دے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی؟ تمہارے مذہب کو سوشل میڈیا پہ آ کے دن رات گالیاں دے تو کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ یا تمہارے ویڈیو بنا کے تمہاری مذہبی کتاب کو جلا دے وہ مسلمان تو کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ بند کر دیں اس طرح سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں امن اور سکون سکھاتا ہے، نہ کہ جہاد۔ ہمارا اسلام کسی کے دھرم پر انگلی اٹھانا یا کسی کے دھرم کو گالی بکنا یا کسی کے دھرم کی کتاب کو جلانا یا کسی کے دھرم کے لوگوں کی توہین کرنا نہیں سکھاتا۔ ہمارا اسلام کبھی بھی ایسا نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کی توہین کریں یا کسی مظلوم پہ ظلم کریں۔ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں دیکھتی ہوں، میں نیوز میں دیکھتی ہوں، میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتی ہوں کہ بس جس کو دیکھو مسلمان مسلمان مسلمان۔ اللہ نے مسلمان قوم کو اتنی پاور دی ہے، اتنی پاور دی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو پاور ملی ہوئی ہے مسلمان کو۔ آپ چاہیں بھی نا ساری دنیا کے مسلمانوں کو ختم بھی کرنا چاہیں نا، تو جتنا ختم کرنے کی سوچو گے اتنا ہی وہ بڑھیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ اتہاس اٹھا کے دیکھیں مسلمانوں کو جس نے، اور رہی بات ہمارے قرآن شریف کو جلانے کی، تو سن لیں، کان کھول کے سن لیں، وہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ نے آسمان سے اسے زمین پہ نازل کیا ہے، اور اس پر اگر آنچ آئے گی اسے جلایا جائے گا یا اس کی توہین کی جائے گی، تو آپ کے لیے بتا دوں کہ اس کا بدلہ مسلمان تو بعد میں لے گا، پہلے اللہ لے لے گا۔ اور ایسے کئی چیزیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ تو نظر انداز کرتے ہیں چیزوں کو۔ اگر آپ دھیان دے لیں، اس پہ توجہ کر لیں، تو شاید آپ کی زندگیاں اور آپ سے جو غلط چیزیں بہت سے لوگ سیکھ رہے ہیں ان کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ لیکن آپ لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو تو ایک ٹی آر پی چاہیے رہتی ہے نا، کہ مسلمان، ساری ٹی آر پی آپ کو مسلمانوں سے ہی ملتی ہے۔ آپ پرانے اتہاس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بہت ساری کتابیں ہیں جن میں مسلمانوں کے ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ جب مسلمانوں کو مٹانے کی بات آئی ہے تب اتنی تیزی سے مسلمان بڑھا ہے۔ تو مت کریں یہ سب، نہ کریں۔ ارے آپ کی اپنی زندگیاں ہیں، اپنی زندگیوں میں رہیے، چند دنوں کی زندگیاں ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت بتائیے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریے، اپنے بچوں بیوی کو گھمائیے پھرائیے۔ یہ کیا ہے یار کہ آپ اپنا آدھا وقت بالکل جو ہے یہ دھرم کے کو لے کے گالیاں بکنا، یا مسلمانوں کو گالیاں بکنا، یا مسلمان کی کتابوں کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ہم نے ہمارے منہ سے کبھی سنا آپ نے مسلمانوں کے منہ سے سنا آپ نے کبھی کہ مسلمان آپ کے بھگوانوں کو گالی بک رہا ہے؟ نہیں بکتا ہے نا، کیونکہ ہمارا اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ان سب چیزوں کی۔ تو پلیز اس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا بند کر دیں۔ دیکھیں، ہم مسلمان کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، نہ جانے مسلمانوں کی طرف سے آپ کے دماغوں میں کیا بھر رکھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہم مسلمان تھوڑے ہیں،
हिंदुस्तान में हिंदुओं के तादाद में, सनातन धर्मियों के तादाद में जो और भी इतने धर्म के लोग रहते हैं, उनमें हम मुसलमान थोड़े हैं। तो आपको हमसे क्यों खतरा है? क्यों आपके दिमाग में ये डर बैठा हुआ है? क्या आप मुसलमानों के लिए अच्छा सोचिए। अच्छा नहीं सोच सकते हैं आप, अच्छा नहीं सोच सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हिंदू दोस्त हैं, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जब 3/13 की जंग शुरू होगी और उस वक्त भी फतेह मुसलमान की होगी, क्योंकि मुसलमान को सिवाय खुदा के कोई नहीं मिटा सकता। सुन लो, मुसलमान को सिवाय खुदा के, उसके रब के, उसके अल्लाह के सिवा कोई नहीं मिटा सकता। और मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों की किताब की हिफाजत, अरे कुरान शरीफ तो हमारे रब की किताब है, उसने नाजिल करी है, उसकी हिफाजत तो वो खुद करता है। जलाने वालों के घर बर्बाद हो जाएंगे, उनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। ना करें अपनी जिंदगियां तबाह, ना डालें अपने घर को मुश्किल परेशानियों में। प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी इंसान के साथ में, जो किसी भी धर्म का हो, उसके साथ कुछ गलत हो या उसके साथ कुछ बुरा हो। आपके दिमागों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस कदर जहर भर रखा है कि आप कुछ और नहीं सोच पाते हैं। आपको मुसलमानों से क्यों खतरा है? मुसलमानों का आपने क्या बिगाड़ा है जो मुसलमान आपको मार देगा, काट देगा? ऐसा आप क्यों सोचते हैं? देखें, हम तो उसकी उम्मत हैं जिसने मोहब्बत बांटी है। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बूढ़ी औरत रास्ते में रोज़ कूड़ा फेंका करती थी, और एक दिन वो बीमार हो गई, उसने कूड़ा नहीं फेंका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वो कूड़ा नहीं गिरा तो उनको फिक्र हुई कि वो बूढ़ी औरत कहाँ गई जिसने कूड़ा नहीं फेंका। वो उसका हाल पूछने गए। मतलब उनको देखिए आप, उनको उस बूढ़ी औरत की फिक्र हुई कि वो हाल पूछने गए उनका, उसका। अगर आपके ऊपर कोई कूड़ा फेंक दे तो क्या आप उसका हाल पूछेंगे? आप तो उसे तुरंत गालियां बकेंगे, और यहाँ तक कि आप कहो उसको मारने के लिए तैयार हो जाएं। है आपके अंदर तब? तो आप खुद सोचिए, जब आपको इतना सी चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि कोई आपके ऊपर कूड़ा फेंक दे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी ने किया है, हमारे हुजूर ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। लोगों को उनसे ऐसे ही मोहब्बत नहीं है। हम मुसलमान उनके लिए यूं ही जान देने को तैयार नहीं है। मेरा कहना है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग फेमस होने के लिए, खुद की एक पहचान बनाने के लिए मुसलमानों को टारगेट ना बनाएं, और मुसलमानों को जलील करके या मुसलमानों को परेशान करके अपनी पहचान बना के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पहचान बन भी रही है ना, तो सिर्फ वो भी मुसलमानों की वजह से बन रही है। आप जाने जा रहे हैं ना अपनी बातों से, जो आप जहर उगल रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं ना, इस वजह से नहीं कि आप जहर उगल रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस वजह से आप नहीं जाने जा रहे। आप तो इस वजह से जाने जा रहे हैं कि आप मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, आप मुसलमानों की किताब को जला रहे हैं, आप मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ रहे हैं, आप मुसलमानों को जलील कर रहे हैं, आप मुसलमानों के रसूल की तौहीन कर रहे हैं। आपको इस बात से टीआरपी मिल रही है, आप इस बात से जाने जा रहे हैं। आपकी अपनी पहचान क्या है? आप बिना मुसलमान के अपनी पहचान बनाइए, बिना मुसलमान को बुरा कह के अपनी पहचान बनाइए, बिना मुसलमान की किताबों को जला के अपनी पहचान बनाइए, बिना मुसलमानों के धर्म पे उंगली उठा के अपनी पहचान बनाइए। क्या पहचान रह जाएगी आपकी? कोई पहचान नहीं है। आपने सिर्फ एक टारगेट बना रखा है मुसलमानों को, कि मुसलमानों से आपके घर का चूल्हा जलता है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? प्लीज़, ज़िंदगियाँ बहुत छोटी हैं, चंद दिनों में अब तो ख़त्म हो जा रही हैं। लोग इधर पैदा होते हैं, इधर ख़त्म हो जाते हैं। लड़का जवान होता है, एक झटके में ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो आप वो वक्त मुसलमानों की किताबें जला के जो आप ज़ाया कर रहे हैं, या मुसलमानों के धर्म पे उंगली उठा के जो ज़ाया कर रहे हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके ज़ाया कर रहे हैं, तो आप वो वक्त अपने माँ बाप के साथ बिताएं, अपने भाई बहनों के साथ में बिताएं, अपनी बीवी बच्चों के साथ में बिताएं। उन्हें इस चीज़ों से ज़्यादा उन्हें खुशी होगी। आप अगर ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो आपके घर फैमिली में टेंशन बनी होती है कि आगे क्या होगा, क्या होगा। ऐसा ना करके, उन्हें टेंशन ना दे के अपने घर वालों को खुशहाल रखिए, खुशहाली दीजिए, उनके साथ बैठिए, वक्त बिताइए।
प्लीज़ मेरे आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप मुसलमानों के पीछे मत पड़िए। क्या आपने कभी देखा कि मुसलमानों ने कहा हो कि इनके मंदिर तोड़ो, इतने बहुत सारे हैं? नहीं। मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने के लिए सब उंगली उठा देते हैं। मुसलमानों ने कभी कहा कि इनके इतने मंदिर हैं तोड़ो, रोड के बीचों बीच में बने हुए हैं तोड़ दो? नहीं कहा। क्योंकि हमारा इस्लाम हमें ये क्योंकि हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ को कहने की इजाज़त नहीं देता। अरे हमारा इस्लाम तो ये भी हुक्म देता है कि तुम काफिर तुम्हारे अगर घर भी आया है ना, काफिर तुम्हारे घर आया है तो तुम उसे खाने के लिए पूछो, उसे दस्तरखान पे अपने साथ बिठाओ, उसे अपने साथ खाना खिलाओ। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम उसको तकलीफ दो। जब तुम्हारा खुदा से पूरी दुनिया को खाना खिला रहा है, तुम्हारा खुदा सारी दुनिया को चला रहा है, तो हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं उस खुदा के बनाए गए बंदों के साथ जुल्म करने वाले? हम कोई नहीं है। हमारे इस्लाम ने हमें इजाज़त नहीं दी है। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? ना करें। आप लोग ऐसा ना करें। आपका मजाक बनता है पूरी दुनिया में। आपको लगता है कि आप ये सब बोल कर लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं या आपको अच्छा समझ रहे हैं। कितने लोग आपकी गालियाँ बकते हैं, कितने लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। कभी सोचा है आपने? इज्जत की ज़िंदगी जिए, इज्जत की ज़िंदगी जिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ये धर्म पे मेरे को गालियाँ देना या धार्मिक किताबों को जलाना या जो है धार्मिक लोगों को परेशान करना, इसमें कुछ नहीं रखा है। इसमें कुछ नहीं रखा है। प्लीज़ आप लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने धर्म पे फोकस कीजिए। आपके धर्म में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलतियां हैं, क्या सही है। अपने अपने ही सनातन धर्म के जो लोग हैं उनकी इज्जत कीजिए, उन्हें अपनाइए। और भी जो दुनिया में लोग हैं उनको अपनाइए। दिलों से नफ़रतों को मिटा दीजिए। नफ़रत इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। नफ़रत के चलते कितनी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं, कितने घर उजड़ गए हैं नफ़रतों के चलते। नफ़रतों के चलते कितने मुल्क बर्बाद हो गए हैं। नफ़रतें मत फैलाइए। नफ़रतों को मेरा आप लोगों से यही कहना है कि देखिए, जिस तरह मैं अपने धर्म की इज़्ज़त करती हूँ उसी तरह मैं दूसरों के धर्मों की भी इज़्ज़त करती हूँ। क्योंकि जितना प्यार मुझे अपने इस्लाम से है उतना ही प्यार आप लोगों को अपने धर्म से होगा। तो जब मैं अपने धर्म पे, अपने इस्लाम पे उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे तकलीफ़ होती है, तो आपको कैसे होगा? आपको भी तकलीफ़ होगी। कोई भी इंसान हो, किसी के धर्म पर उंगली उठाएगा उसको तकलीफ़ होगी। ना करें आप लोग ऐसा प्लीज़। एक ज़िंदगी ऊपर वाले ने आपको अता की है, उस ज़िंदगी को गुजारें आप, अच्छे से गुजारें, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। इसके आगे भी एक खूबसूरत ज़िंदगी है जो रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता की है। उस ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं आप। मर के चले जाना है हम सबको, सब यहीं रह जाना है आप। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि मुसलमानों को टारगेट बनाना बंद कर दें। प्यार मोहब्बत से भी रह के देखें। नफ़रतों से तो बहुत जी लिए हैं कि मुसलमानों को हटाओ, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को काटो, मुसलमानों को भगा दो हिंदुस्तान से, ये वो जो भी ब्ला ब्ला चीज़ें होती हैं, नफ़रतों से बहुत जी लिए हैं। एक बार मोहब्बत से जी के देखिए, प्यार से जी के देखिए। आपको पता है नफ़रत का अंजाम कितना बुरा होता है। नफ़रतों में कुछ नहीं रखा है। मोहब्बत से जिए, प्यार से जिए, लोगों की इज्जत करिए, लोगों के धर्म की इज्जत कीजिए। बस मेरा यही कहना है आप लोगों से।